Hi dearies, welcome to Prati's kitchen. How are you all doing? Hope you're doing good. तो आज प्रति के किचन में बनेगा something really yummy and summer special. So today I'm going to be showing you how to prepare instant chocolate ice cream and to go with it a yummy variety of cone. So let's get cooking. So who doesn't love chocolates and ice creams? I can live on them. And जब मुझे पता चला कि ice creams इतनी आसानी से बन सकता है with very basic ingredients available at home, I have started making ice creams only at home. अब मुझे बाहर की चोकोबार या फिर कोई भी स्टोर बॉट आइसक्रीम्स बिल्कुल नहीं पसंद आती बिकॉज इसका जो ये richness है, you see it's so rich and the texture is so creamy. It turned out so delicious and I know what is going in there. So I basically look forward to the hygiene factor, to the kind of ingredients that's gone into it and how easy it was. तो मैं तो ढेर सारा अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ. Look at that yummy texture, it is so creamy. मेरे मुंह में तो पानी आ गया. तो चलो मैं आपको बता देती हूँ आइसक्रीम बनता कैसे है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मारी बिस्किट लिया है, 20 मारी बिस्किट. आप मारी बिस्किट की जगह कोई भी चॉकलेट बिस्किट या कुछ भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर इट्स नॉट सॉल्टेड. तो इसको मैंने यहाँ पे रफली क्रम्बल करके मिक्सर ग्राइंडर में ले लिया है. इसमें मैं अब डालूंगी अबाउट हाफ अ कप ऑफ शुगर विच इज़ नॉर्मल शुगर, अबाउट से 6 टेबल स्पून. इसको अच्छे से आपको पाउडर कंसिस्टेंसी में ग्राइंड करना है, बिल्कुल सॉफ्ट. एंड ये जब इतना पाउडर कंसिस्टेंसी में आ जाए तब हम इसमें 1 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे. सो जस्ट पोर इन अ कप ऑफ मिल्क, नॉर्मल मिल्क. ये 1 टेबल स्पून कोको पाउडर है. अगर आपका बिस्किट चॉकलेट बिस्किट है तो डोंट ऐड, दिस इज चॉकलेट एसेंस, डोंट ऐड इफ़ यू डोंट वांट, इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल. ये हाफ अ टेबल स्पून मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर इस्तेमाल किया है. प्लीज़ ऐड इंस्टेंट कॉफ़ी, इट एक्चुअली एड्स टू द फ्लेवर. ये अब मैं यहाँ पे हाफ अ कप अमूल क्रीम ले रही हूँ. आप चाहो तो फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं, बट डू ऐड हाफ अ कप ऑफ क्रीम विच एड्स टू द थिकनेस एंड रिचनेस ऑफ द आइसक्रीम. तो इसको मैंने हल्का सा ब्लेंड कर लिया है. इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ब्लेंड नहीं करना है, पल्स मोड में ब्लेंड कीजिएगा बिकॉज ये फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज यू एडेड क्रीम इन इट. तो ये अच्छे से जब ब्लेंड हो जाए तो ट्रांसफर इट टू अ कंटेनर एंड वी गोना बी फ्रीजिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर मिनिमम 2 to 4 hours बिकॉज वील रिमूव इट एंड अगेन ब्लेंड इट एंड कीप इट फॉर फ्रीजिंग. तो चलिए अभी हम कोन की रेसिपी देख लेते हैं. सो दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स वी वुड रिक्वायर फॉर मेकिंग अ कोन. तो सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप ऑफ शुगर पाउडर, कास्टर शुगर विच इज़ अबाउट रफली 3 टेबल स्पून. इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है. इसको अच्छे से आप पहले मिक्स कर लें एंड वंस इट्स मिक्सड वेल एड इन योर 1 कप ऑफ all purpose flour which is maida. To it I'm adding 2 tablespoons of corn flour. Add in half a teaspoon of baking powder, a pinch of salt and a cup of milk. Now just give it all a good mix. Make sure you're just mixing this batter lump free. So we don't want any lumps in there. I'm adding a teaspoon of vanilla essence here just to give it a little nice flavor. So just give it a good mix and blend it mix it pretty well. And if you still find any lumps in there, to double ensure, just sieve it super well. So just use a strainer and try to just mix it all super duper well with no lumps in there. Now you may either choose to add a little more milk or water to it to keep your batter thin. I'm going to be keeping it a little thicker. So this is the consistency I've kept it for today. Now let's start making our cones, our cone molds basically, which are going to be of cone shape. So I'm going to be making cone shapes out of these plastic sheets. So I've taken a regular folder, any folder, just pick it up, cut it into 4 pieces. So you approximately need 4 rectangular sheets of which we're going to be making nice cones and stick it with the cello tape and then use it as a mold. Now here to draw a circle, I'm using a regular sketch pen. I would recommend you to use an edible one. If not, do wash it and clean it before using it. So I just drew a circle using a bowl. You may use a plate or anything of whichever size you want. I've taken a medium sized one, rather a little smaller one I would say. So just cut it, wash it and dry it. Just pat dry it, make sure there's no water droplets in there, and now we'll start making the cone. So I'm just going to be swirling it using my thumb inwards and then rolling it up from outside. So it's that simple. And then once your cone is done, stick it using any cello tape at the bottom. So just use one cello tape, do not overcrowd it and stick it
ट्वाइस और थ्राइस और मोर देन दैट, क्योंकि इसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप सेलो टेप निकालेंगे इट्स गोइंग टू बी सो डेलिकेट दैट द चांसेस ऑफ ब्रेकिंग द चॉकलेट कोन वुड बी हाई. सो जस्ट यूज़ वन सेलो टेप एट द बॉटम एंड दैट शुड बी गुड. अब ये एक और मैं कोन बना रही हूँ. एक थोड़ा सा थिक कार्डबोर्ड आपको लेना है. यहाँ पे मैं ग्रीन टी का बॉक्स यूज़ कर रही हूँ. बेसिकली आई हैव गॉट दिस थिक कार्डबोर्ड सॉर्ट ऑफ शीट. सो इसका मैंने कोन बनाया है. तो ये भी मुझे कोन को रैप करने में ये मुझे चाहिए. सो यू विल जस्ट कम टू नो व्हाई आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस, वेयर आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस. इसको भी इसी तरह कोन की तरह बना के आपको सेलो टेप में चिपकाना है. सो ये बन गए मेरे कोन. अब हम बनाएंगे हमारे बैटर को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग. तो जो मैंने बैटर मिलाया था उसको मैं थोड़ा सा say 1/4 of it I'm just taking it and adding about a tablespoon of cocoa powder to give it a cocoa taste, like a chocolate taste. तो यहाँ पे मैंने कोको पाउडर ऐड किया. थोड़ा सा थिक हो गया है. अगर आपका बैटर थोड़ा थिक हो लगे तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल करें या पानी का एंड मेक इट थिन. तो यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा दूध ऐड किया है टू मेक इट लिटिल थिन. तो आज की जो ये रेसिपी है, ये बैटर को मैं इसलिए थिक रख रही हूँ क्योंकि मैं इसको एक पाइपिंग बैग में फिल करके इसको एक डिज़ाइनर लुक देने वाली हूँ. बट आई वुड रेकमेंड कि आप इसको नॉर्मल रखें. सो बेसिकली टू स्टार्ट विद, आप अपना ये जो कोन है बिल्कुल डोसा के बैटर जैसे स्प्रेड करते हैं वैसे आप स्प्रेड करेंगे. बिल्कुल थिन स्प्रेड करेंगे और उसको लो फ्लेम में बिल्कुल पकाएंगे दोनों तरफ, तभी आपके क्रिस्प बनेंगे. तो यहाँ पे आज मैं पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ जस्ट टू गिव दैट डिज़ाइन विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो यहाँ पे ये मैंने चॉकलेट मिक्स को डाल दिया, बैटर मिक्स को डाल दिया एक पाइपिंग बैग में. अब हम इसी तरह से हमारे वाइट बैटर को भी डाल लेंगे. द रिमेनिंग बैटर दैट आई हैव उसको भी मैं फिल कर लूँगी एक पाइपिंग बैग में. And then we'll start making it in the pan. Now basically see, it's sensible that you'd be thinking कि मैं ये design क्यों बना रही हूँ, because for ice cream it might not hold my ice cream, but eventually I landed up putting a chocolate cone inside this cone and then उसके अंदर मैंने ice cream fill किया. तो it wouldn't drip out. Just to make it to give it a look, that beautiful look, I'd made this. but आप डोसे का ही shape दें इसको, या मैंने ये जालीदार शेप दिया है. तो बेसिकली पहले मैंने वाइट का इस्तेमाल किया एंड उसके ऊपर से मैंने इसको चॉकलेट बैटर से थोड़ा सा बीच में विदाउट गिविंग एनी स्पेस ट्राई टू फिल इट अप, गिविंग द सेम डिज़ाइन, एग्जैक्ट डिज़ाइन, ताकि मेरी आइसक्रीम भी ये होल्ड कर सके एंड ऑल्सो ये बहुत खूबसूरत भी लगे. सो आई गॉट दिस ड्यूअल कलर चॉकलेट एंड वनीला फ्लेवर, लुक्स ब्यूटिफुल टू. तो आप इसको एक्चुअली बास्केट का भी शेप दे सकते हैं, कोन का भी शेप दे सकते हैं, कोई भी कटोरी में भी. एज सून एज आई फ्लिप इट ओवर एंड रिमूव इट फ्रॉम माई पैन, जब ये गरम है तब आपको इसको किसी भी मोल्ड में डालना है. आज मैं इस कोन का इस्तेमाल कर रही हूँ. आप चाहो तो इसको एक बोल में भी डाल सकते हैं, उस बोल का शेप भी दे सकते हैं एंड देन जस्ट होल्ड इट फॉर सम टाइम एंड इट विल जस्ट होल्ड अप दैट शेप in no time. तो ये गरम होता है. just be little careful. use this paper cone that I'm using in. don't use plastics because plastics again has a tendency to kind of don't use plastics even otherwise when things are hot, especially when it is to do with edible things. तो बस ये केयरफुली आपको रैप ऐसे कोन का शेप इसको देना है और उसको वैसे ही रख देना है टू सेट फॉर अबाउट 5-10 मिनट्स. अब ये मैं दूसरा कोन बना रही हूँ यहाँ पे जस्ट टू इंश्योर यू हैड सीन इट थ्रू अगैन केयरफुली. तो यहाँ पे मैं आई एम जस्ट pretty much not bothered about the kind of flowing consistency at the corners because वैसे भी मेरे आइसक्रीम को इसने होल्ड करना है. तो आई एम जस्ट making it that way just to give a rough the zigzag shape. तो ये मैंने दोनों वापस वनीला और चॉकलेट का बैटर इस्तेमाल किया, यही डिज़ाइन मैंने दिया. इसको दोनों तरफ से आपको सिम में बिल्कुल लो फ्लेम में पकाना है, आपको इसको बिल्कुल बर्न नहीं करना है. सो कुक इट ऑन बोथ द साइड्स एंड वंस डन रिमूव इट. सो एज सून एज यू रिमूव इट इमीडिएटली ट्राई टू गिव इट अ रैप. सो जस्ट यूज़ योर कोन, द पेपर कोन, and be very careful and gentle because with your hands because it's going to be really hot. Use a cloth if you want to and just give it a nice cone shape and just put it as it
this to lay there for 5 to 10 minutes inside the paper cone so that it holds the shape. So see, tada, my beautiful cones are done. तो इसको और crispy बनाने के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी for about an hour. अब हम हमारी interesting chocolate cones बनाएंगे और chocolate cones बनाने के लिए मैं यहाँ compound chocolate ले रही हूँ. I'm just melting it in the microwave for about 40 seconds. I just heated it and it's melted. अब ये melt हो जाएगा तब हम हमारे plastic cones जो हमने बना के रखी हुई थी उसमें हम इसे carefully अंदर drip करेंगे very neatly and keep swirling it from the bottom, overturning it and making sure that it's just kind of forming a cone shape and getting stuck to your plastic sheet thoroughly. तो यहाँ पे कोई भी मतलब बबल या कोई होल या कुछ ना रह जाए. परफेक्ट आपको कोन फॉर्म करना है और जो भी एक्सेस अंदर है आप इसको प्लीज़ ड्रिप इट आउट, जस्ट पोर इट आउट एंड कीप इट थिन. डोंट कीप इट मोर थिन. इट शुडंट बी ईदर कम्प्लीटली थिन और थिक बिकॉज आपको वेट से पता चल जाएगा. जैसे ही आप इसमें जो एक्स्ट्रा बॉटम में जो आपकी चॉकलेट रुकी हुई है उसको आप ड्रिप करके बाहर डाल देंगे ना, दैट इज़ मोर देन इनफ. बट कीप योर सरफेस अ लिटिल थिकर. बहुत ज़्यादा भी थिन रखेंगे तो फिर जब आप खोलेंगे द पॉसिबिलिटीज़ आर इट माइट ब्रेक. तो आप इसको ज़्यादा थिन भी ना रखें, थिक भी ना रखें. तो मेरे ये कोन्स तैयार हो गए हैं. इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी 10 मिनट्स के लिए इन द रेफ्रिजरेटर. और मीनवाइल मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए थोड़े से डिज़ाइंस बना रही हूँ, जबकि आई डोंट नीड इट बट आई रियली लव मेकिंग इट मोर क्रिएटिव. बट ये बना कुछ ज़्यादा क्रिएटिव नहीं था बट यू कैन गिव इट एनी डिज़ाइन यू लाइक टू. यहाँ पर मैं ये चॉकलेट लीव्स बना रही हूँ. तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं, whatever shape you like, butterfly shape और heart shape and whichever you like. and इसमें ये जब सेमी सॉलिड हो तभी आप ये इम्प्रेशन दे दीजिएगा लीफ का. ये मैं भूल गई थी इसलिए मैंने खैर लास्ट में एक लाइन ड्रॉ कर दिया सो दैट इट जस्ट लुक्स लाइक लीफ. अब ये जो मेरा फ्रीज़ हो रहा था कोन फ्रिज में फॉर अबाउट 10 मिनट्स, ये तैयार है बिल्कुल. इसको धीरे से आपको सेलो टेप से निकाल कर आपको इसको सर्विंग ट्रे में रखना है. तो आप ये प्लीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपको सर्व करना है तभी आप निकालें, उसके पहले ना निकालें. उसके पहले आप विद द प्लास्टिक यू कैन स्टोर इट फॉर एज मैनी डेज एज यू वांट टू. अब ये मैं थोड़े और डिज़ाइंस बना रही हूँ. एज आई सेड I'd love to sprinkle some choco chips because I was out of small tiny choco chips. I had the flat button ones. तो यहाँ पे मैं थोड़े हार्ट्स बना रही हूँ, चोको चिप्स बनाऊंगी एंड ऐसे ही कुछ भी टाइम पास के लिए लिख दिया बट आप कुछ भी बना सकते हैं whatever you like. As I said, butterfly and any other designs. तो यहाँ छोटे छोटे चोको चिप्स बना रही हूँ मैं जस्ट टू स्प्रिंकल ओवर. सो जस्ट फ्रीज़ इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स. ये जो आइसक्रीम हमने 2 घंटे के लिए रखी थी, ये 4 घंटे अगर आप रखते तो ये ज़्यादा आइसक्रीम फॉर्म में आ जाता. अब इसको हम अच्छे से वापस ब्लेंड करेंगे टू मेक इट मोर रिच एंड क्रीमी. बेसिकली इसको 2 बार ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है टू गिव इट अ एक्स्ट्रा रिच एंड क्रीमी टेक्स्चर. अब इसमें आप चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं इस टाइम, या जो भी आपको ग्रेटर चॉकलेट ऐड करना है या कुछ भी. फ्रीज़ करें ओवरनाइट. ये मैंने ओवरनाइट फ्रीज किया सो इट्स कम्प्लीटली डन. सो बेसिकली आई वुड रिकमेंड आप इसको ओवरनाइट ही फ्रीज करें टू गेट गुड रिजल्ट्स. सी हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ फ्रोजन अप. एंड ये जो मैंने कल बनाए थे चोको चिप्स एंड हार्ट्स, ये भी अच्छे से बन चुके हैं. अब मैं हमारे कोन्स की प्लेटिंग करना शुरू करती हूँ. तो ये मैंने कोन लिया फ्रेश, अभी मैंने इसको प्लास्टिक रैप से निकाला है. सो वेन एवर यू वांट टू यूज़ देम ओनली देन रिमूव देम एंड जस्ट टू अवॉइड दोज क्रैक्स एंड अनवांटेड ट्रेजेडी एट द लास्ट मोमेंट. सो तो मैं इसको ऐसे प्लेटिंग कर रही हूँ. छोटे से शॉट्स के ग्लास में मैं इसको रख दूँगी एंड छोटे छोटे स्कूप्स जाएंगे मेरे कैडबरी चॉकलेट के कोन में. और ये वाला जो कोन है इसमें देखिए इतना रिच एंड क्रीमी, मतलब इतना डिलिशियस बनता है. ट्रस्ट मी, मेरे को ये मैग्नम जैसे लगा. लाइक द रिचनेस ऑफ मैग्नम, यू कैन जस्ट टेस्ट दैट लिटरली इन दिस. एंड दिस वाज हेवनली यम. वी ऑल लव्ड इट. सो होप dearies you all like this video and you'll give it a try. So do give it a try and I'm sure you'll not regret making it once. So wishing you all a very happy cooking, dearies. Thank you for watching Prati's Kitchen.